بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افغانستان پر طالبان کا قبضہ بڑھتے کٹرپن کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم مودی کا SCO سمٹ سے خطاب، کہا ماڈریٹ اسلام کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ طالبان کا قبضہ نئی حقیقت ہے، افغانستان میں امن پوری دنیا کے حق میں ہے، عمران خان کا خطاب۔ پاکستانی وزیر اعظم کی رئیسی سے ملاقات، ایرانی صدر نے کہا افغانستان کی تباہی کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ رشین صدر پوٹین نے کہا امریکہ افغانستان سے فرار ہو گیا، طالبان وعدے پورے کریں گے۔ جے شنکر کی چائنیز وزیر خارجہ سے ملاقات، کہا تعلقات میں بہتری کے لیے فوجیں پیچھے ہٹنی چاہیے۔ سعودی عرب کے کئی مقامات پر حوثیوں کے حملے، یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کی ہادی سے ملاقات۔ اسرائیل نے کہا یہودی بستیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، محمود عباس 67 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کا خواب نہ دیکھیں۔ برقعے پر پابندی لگائی جائے، برطانیہ کی نئی وزیر نے کیا مطالبہ، کہا پرانے دور کا لباس ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ ختم کر دیا، سیکیورٹی خطرے کو وجہ بتایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے علاقے کو جس سب سے اہم مسئلے کا سامنا ہے وہ بڑھتا ہوا کٹرپن ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حالیہ واقعات نے کٹرپن کے چیلنجز کھل کر سامنے لا دیے ہیں۔ انہوں نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیڈرز کی چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مودی نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی، امن اور اعتماد کی کمی بڑے چیلنجز ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کٹرپن کے خلاف لڑائی نہ صرف خطے کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے بلکہ اس سے نوجوانوں کے مستقبل کو بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ SCO ملکوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اعتدال پسند روادار اسلام کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل ایشیا اعتدال پسندی اور ترقی پسند تہذیبوں اور قدروں کا مرکز رہا ہے۔ مودی نے کہا کہ صوفیزم جیسی روایتیں کئی صدیوں سے یہاں پر یعنی سینٹرل ایشیا میں پھلتی پھولتی رہی ہیں اور پورے علاقے اور دنیا میں پھیلتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اظہار اس خطے یعنی سینٹرل ایشیا کے تہذیبی ورثے سے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ باتیں ایک ایسے وقت کہیں جب افغانستان میں طالبان نے قبضہ کر لیا ہے جس پر انڈیا اور باقی دنیا کو کئی اندیشے ہیں۔ وزیر اعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔
शंघाई समिट इस बार हाइब्रिड तरीके से हो रहा है। बाज़ लीडर्स ने शख्सी तौर पर और बाज़ ने वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। मोदी ने एससीओ के रुकन मुल्कों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तंजीम एतमाद पैदा करने के लिए मिलकर काम करे। इस तंजीम में चाइना और पाकिस्तान भी शामिल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के मफादात अलग अलग हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एससीओ रुकन की हैसियत से हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि इंतहा पसंदी और कट्टरपन को रोकने के लिए काम किया जाए। 20 साल की जंग के बाद अमरीका पिछले महीने अफगानिस्तान से वापस चला गया। इंडिया को डर है कि कहीं पाकिस्तान तालिबान पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल इंडिया के मफादात के खिलाफ न करे। तालिबान के बाज़ ग्रुपों पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की पकड़ है, जो उबरी हुकूमत में अहम ओहदे भी रखते हैं। इंडिया को इस बात की भी फिक्र है कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसी तंजीमों के लिए अफगानिस्तान के हालात का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को एक सरकारी पॉलिसी के आले के तौर पर इस्तेमाल करता है। ईरान इस मौके पर मुकम्मल रुकन की हैसियत से एससीओ में शामिल हुआ। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर डायलॉग पार्टनर की हैसियत से एससीओ में शामिल हुए। ये तंजीम 2001 में बनाई गई थी, जिसमें शुरू में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। बाद में इंडिया और पाकिस्तान जून 2017 में एससीओ के रुकन बने। इस तंजीम का असल मकसद रुकन मुल्कों और खित्ते में आपसी भरोसे को मजबूत करना है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने, जो शख्सी तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं, दोशांबे ताजिकिस्तान में ईरान, आर्मीनिया और उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। बताया गया कि इन मीटिंग्स में कई मसाइल, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसके असरात के बारे में बातचीत की गई। इंडिया ने चाइना से कहा है कि आपसी ताल्लुकात उसी वक्त बेहतर होंगे जब दोनों मुल्क अपने अपने सिपाहियों को पीछे हटाएंगे। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दोशांबे में चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी से बातचीत करते हुए ये बात कही। जयशंकर ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने चाइनीज़ वज़ीर के साथ सरहदी इलाकों से पीछे हटने के बारे में बातचीत की और इस सिलसिले में बताया कि अमन व आशती की बहाली बहुत ज़रूरी है और ये आपसी ताल्लुकात को बढ़ावा देने की बुनियाद है। इसलिए कि कई महीनों से इंडिया और चाइना के दरमियान सरहदों पर तनाव है, जिसकी वजह से आपसी ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं। पिछले साल जून में इसी मसले की वजह से सरहद के दोनों तरफ हलाकतें हुई थीं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग 2 दिन जारी रही। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने एससीओ समिट से खिताब करते हुए कहा कि रुकन मुल्कों को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान में एक जामी और ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाने के लिए तालिबान की हौसला अफजाई की बात की। जी जिनपिंग ने वीडियो लिंक के जरिए एससीओ समिट से खिताब किया। एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना अफगानिस्तान से अमरीका की वापसी को अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है, लेकिन बज़ाहिर उसने अफगानिस्तान से बाहर निकलने के अंदाज पर अमरीका पर तनकीद की है। चाइना सबसे पहला मुल्क है जिसने अफगानिस्तान के लिए $31 मिलियन मदद का ऐलान किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना अफगानिस्तान पर अपने नए असर और रसूख का इस्तेमाल अपने तिजारती मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए करेगा।
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने SCO समिट से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान में एक नई हकीकत सामने आई है। 20वीं SCO समिट से खिताब करते हुए जो ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशांबे में हुई, इमरान खान ने कहा कि तमाम अफगानियों के हुकूक का एहतराम करना चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अफगानिस्तान फिर से कभी दहशत गर्दों के लिए महफूज ठिकाना ना बने। इमरान खान ने यह बात नोट की कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा किसी खून खराबे के बगैर हुआ और ना ही रेफ्यूजियों का कोई बड़ा बहरान पैदा हुआ। ये बात इत्मीनान के लायक है। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया के हक में है कि अफगानिस्तान में फिर से कोई लड़ाई ना हो और सिक्योरिटी की सूरत हाल मजबूत हो। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान को किसी भी देरी के बगैर इंसानी मदद पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त है कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ ठहरा जाए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अफगान हुकूमत का बुनियादी तौर पर दारोमदार गैर मुल्की मदद पर रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान हुक्मरानों को अपने वादे पूरे करने चाहिए और एक जामे हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें तमाम नस्ली ग्रुपों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान को बाहर से कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उन्होंने 20 साल मुकम्मल होने पर SCO को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान रुकन की हैसियत से अपना हिस्सा अदा करता रहेगा। इमरान खान ने दोशांबे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल पर ईरान ने कुछ दिन पहले नाराज़गी का इजहार किया था। इस मौके पर रईसी ने मिडल ईस्ट के इलाके में अमेरिका के तबाहकुन रोल की मजम्मत की और कहा कि अमेरिकी कब्जा अफगानिस्तान की तबाही के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी एक तारीखी लम्हा है और ये वक्त है कि अफगानिस्तान में एक अवामी हुकूमत बनाई जाए और अमन कायम किया जाए। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि ईरान और पाकिस्तान को एक जामे हुकूमत बनाने में अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने समिट से खिताब करते हुए अमेरिका के अफगानिस्तान से फरार के बाद एक मिला जुला रुख इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत की इस बात के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए कि वो अमन इस्तेहकाम के बारे में अपने वादों को पूरा करे। उन्होंने ये भी बात नोट की कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली खून बहाए बगैर हुई और ये एक बहुत अच्छा लम्हा है। रशियन सदर ने कहा कि तालिबान फ़िलहाल तकरीबन पूरे मुल्क पर कंट्रोल रखते हैं और उन्हें सबके लिए हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए, आम जिंदगी ठीक करनी चाहिए और अमन के वादे पूरे करने चाहिए। अफगानिस्तान के अवाम तालिबान पर जोर दे रहे हैं कि वो एक जामे हुकूमत बनाए। फिलहाल तालिबान ने एक उबरी कैबिनेट बनाई है जिसमें सिर्फ तालिबान के नुमाइंदे शामिल है। इसमें कोई औरत भी नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि तालिबान के अलग अलग ग्रुपों के दरमियान अहम ओहदों के बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर वादी पर तालिबान के कब्जे के बाद मुसलसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि तालिबान मकामी लोगों पर ज्यादतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग फरार हो रहे हैं। अल जजीरा चैनल ने ऐसे कई लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की। ऐसी खबर है कि पंजशीर में तालिबान ने इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस काट दी है। तालिबान ने 6 सितंबर को लड़ाई के बाद पंजशीर पर कब्जा किया था। बरतानिया के एक वजीर ने मुस्लिम औरतों के ताल्लुक से मुतनाज़िब बयान दिया है, जिसके बाद उन पर इस्लामोफोबिया का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने बुर्क़े को पुराने दौर का लिबास करार दिया। 64 साल लेडाइन डेविस को पिछले हफ्ते ही कल्चरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। बोरिस जॉनसन ने भी पिछले हफ्ते कैबिनेट में तब्दीलियां की थी और इससे पहले वो भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने बुर्क़े पर तनकीद करते हुए इसे ज़ालिमाना लिबास करार दिया था। उन्होंने कहा था कि औरतें जब बुर्क़ा पहनती हैं तो बैंक लूटने वाली या लेटर बॉक्स की तरह नज़र आती हैं। वजीर ने बुर्क़े पर पाबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने स्काई न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने और आगे बढ़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि औरतों को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो क्या पहनना चाहती हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कई औरतों को अपनी पसंद का लिबास पहनने नहीं दिया जाता। यमन के जिलावतन सदर अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी ने जंग खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की नई कोशिशों की तारीफ की। मंसूर हादी ने यमन से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नए नुमाइंदे से मुलाकात की। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब मारीब में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक नए नुमाइंदे को मुकर्रर किया है। हादी ने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि अमन हमारी पसंद है, हम अमन और हम-आहंगी की तायीद करते हैं। यमन में पिछले 24 घंटों के दौरान लड़ाई तेज़ होने की खबर है।
सऊदी इत्तेहाद ने हूसियों के ताज़ा हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने बताया कि सरहदी शहर जाजान पर हमले की कोशिश की गई, 4 ड्रोन्स को मार गिराया गया। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि ईरान हूसियों को हथियार देता है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हूसियों ने सऊदी अरब के अहम मकामात को निशाना बनाया। जीजान और कई दूसरे इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। सऊदी अरब, यूएई, बरतानिया और अमेरिका ने यमन की मौशी हालत पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने यमन की माली मदद के लिए सऊदी अरब की तारीफ की। इन चारों मुल्कों ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि यमन की जिलावतन हुकूमत अदन वापस लौटे। अमेरिका और बरतानिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फौजी समझौते के लिए दुनिया भर में तनकीदों का निशाना बनना पड़ रहा है। इस समझौते के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएंगे। इस समझौते को चाइना के खिलाफ बताया जा रहा है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा बेनी गैंट्स ने कहा कि फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियां ख़त्म नहीं की जाएंगी। उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से खिताब करते हुए कहा कि वो 1967 की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत के ख्वाब न देखें। बेनी गैंट्स ने फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। कुछ दिन पहले बेनी गैंट्स ने महमूद अब्बास से रामल्ला में मुलाकात की थी। बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 34,430 नए कोविड केस पाए गए। एक दिन पहले के मुकाबले में कोविड केसों में 12% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 77 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस 3,40,000 के करीब हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इंडिया ने पहली मरतबा एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीन डोजेस देने का रिकॉर्ड बनाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर यह कारनामा अंजाम दिया गया। हुकूमत ने 2 करोड़ 50 लाख टीकों का निशाना बनाया था या मुकर्रर किया था और दोपहर तक ही 1 करोड़ से ज़्यादा डोजेस दे दिए गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान का दौरा ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में ये बात कही। इस बयान में कहा गया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने बताया कि उनके लिए सिक्योरिटी अलर्ट है, जिसके बाद सीरीज़ मुलतवी करने का फैसला किया गया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क का दौरा करने वाली तमाम टीमों के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। बयान में कहा गया कि हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को भी यकीन दिलाया था। यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने शख्सी तौर पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जासिंडा आर्डन से बातचीत की और उन्हें बताया कि पाकिस्तान के पास दुनिया का एक बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम है और टीम को किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारे लिए दौरा जारी रखना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस और 5 T20 मैचेस खेले जाने वाले थे। अक्टूबर में इंग्लैंड टीम भी पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। सिक्योरिटी खतरा क्या है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा बढ़ते कट्टरपन का सबूत है। वजीर आजम मोदी का SCO समिट से खिताब, कहा मॉडरेट इस्लाम को बढ़ावा देना चाहिए। तालिबान का कब्जा नई हकीकत है। अफगानिस्तान में अमन पूरी दुनिया के हक में है। इमरान खान का खिताब। पाकिस्तानी वजीर आजम की रईसी से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा अफगानिस्तान की तबाही के लिए अमरीका जिम्मेदार है।
रशियन सदर पुतिन ने कहा अमेरिका अफगानिस्तान से फरार हो गया, तालिबान वादे पूरे करेंगे। जयशंकर की चाइनीज वजीर खारजा से मुलाकात, कहा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए फौजें पीछे हटनी चाहिए। सऊदी अरब के कई मकामात पर हूसियों के हमले, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने की हादी से मुलाकात। इसराइल ने कहा यहूदी बस्तियां कभी खत्म नहीं होंगी। महमूद अब्बास 67 की सरहदों पर फलस्तीनी रियासत का ख्वाब न देखें। बुर्के पर पाबंदी लगाई जाए, बरतानिया की नई वजीर ने किया मुतालबा, कहा पुराने दौर का लिबास है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा खत्म कर दिया, सिक्योरिटी खतरे को वजह बताया गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।